I always love to say that the largest bank in the country is actually not Habib Bank or MCB or National Bank, but it's the mattress, because people have more money under the mattress than all banks put together in this country. That means that if the money is outside of the banking system, you can't use that money to lend back to businesses and to people. So the biggest problem is that money is in cash, and at the same time the banks are not lending money out to the businesses and individuals, because of which the economy is not growing. Digital credit or credit is the fastest way for the economy to grow, because all the economy is in cash. The banks can't see, or the fintechs can't see what an individual or a business is doing in terms of that digital data and can't lend against it. अगर आप कैश में और पेपर में डील करते हैं तो जब भी इस तरह की पैंडेमिक होती है या क्राइसिस होता है, आपकी टेंडेंसी होती है कि आप उस कैश को होल्ड करें और वो आप अपने पास लेके आएँ। तो एग्जैक्टली वही हुआ, पीपल स्टार्टेड टू होल्ड कैश। अगर हमारे बिजनेसेस के डिजिटल सेल्स चैनल्स होते और हम डिजिटली उन बिजनेसेस को पे कर सकते और लॉजिस्टिक्स के थ्रू वो चीज़ें हमें घरों में आ सकती, तो ना कैश होल्ड होता, ना सामान होल्ड होता और ना ही बिजनेसेस को तकलीफ़ होती। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये एक्सपोज हो गया कि डिजिटाइजेशन फॉर अ कंट्री इज़ नॉट एन इवेंट बट इट्स अ प्रोसेस। It's a behavior change that happens over a period of time through policy interventions, and we were not ready. Because we were not ready, we went out and faced all of these problems. And there is no way that you can solve these problems during the pandemic, because it's a process, not an event. और ये नज़र आ गया एहसास प्रोग्राम में गवर्नमेंट के कि जब आपने गरीब लोगों को हेल्प करने की कोशिश की तो आपने उनको घरों से बाहर बुला लिया और एजेंट्स पे ले गए और फिर उनको कैश दिया। तो मतलब ये तो we went back into the past actually, because earlier some of these programs that we ran in this country had digital elements to it, because जब हमें क्राइसिस में वो करना पड़ा तो हम सिर्फ कैश मैनेज कर सके। फिर और हमने कुछ ऐसे मूव्स किए, जैसे हमने अपनी टाइमिंग्स रिड्यूस कर दी बैंक ब्रांचेस की, मॉल्स की और इस तरह की जगहों की, बिजनेसेस। तो जैसे ही स्टेट बैंक ने उसको फ्री किया, देखते ही देखते IBFTs इस मुल्क में डबल हो गई। आज जो है वो 500 मिलियन 500,000 IBFTs happen every day. Before the pandemic, when the transfers were priced, they were about 200,000 a day. So in no time, the IBFTs or the digital transfers grew. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये अच्छी चीज़ हुई है। मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस और इदारे आएंगे और वो पॉलिसी इंटरवेंशंस करेंगे डिजिटाइजेशन की तरफ, तो लार्ज स्केल बिहेवियर चेंज विल फॉलो। The banks have been very successful in banking the people in the Western Hemisphere, and most people are banked in the Western Hemisphere. But in the Eastern Hemisphere, people are not banked. And that is not by chance, it's by design, because banking is the only industry that operates on an exclusionary approach. Meaning that when I walk into a bank, my branch manager, she looks me up and down and sees what kind of shoe I'm wearing. And she judges me and she creates my self-worth. And if I'm wearing slippers and if I'm somebody's cook, I get very bad treatment there, and I've been asked then all sorts of documents and I run away. So the transformation will happen by hundreds of fintechs and startups coming up and solving a multitude of problems that the banks are facing in servicing the businesses and the customers in the new world. And the businesses and the customers demand a very high level of digitization now that the banks can't do. Because you remember, digitization is a process and banks are platforms and they can't innovate to save their lives. So how would they create the next generation of services that are demanded by the businesses through these collaborations? एक बिजनेस के दो काम हैं। एक काम यह है कि उसने अपने एम्प्लॉइज़ को और वेंडर सप्लायर्स को रेगुलर पेमेंट्स करनी है, और दूसरा उसका काम यह है कि उसके कस्टमर्स ने जो उसको पैसे ओ करने हैं वो उसने डिजिटली कलेक्ट करने हैं। तो फिंजा का जो फिंजा बिजनेस पोर्टल है,
वो हर बिज़नेस को, चाहे वो जिस मर्जी साइज़ का है, अलाउ करता है आज के दिन में कि वो मिनटों में फिंजा का वर्चुअल अकाउंट खोले और अपने बैंक अकाउंट से उसमें पैसे लोड करे और पेमेंट्स भी करनी शुरू कर दे और कलेक्शंस भी करनी शुरू कर दे। इस वक्त हमारे पास क्लोज टू 1000 बिजनेसेस हैं और हमारे पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिसमें ईजी पैसा के साथ जो एंड फाइनेंशियल की इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़े वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म्स है, वो फिंजा बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। मेज़ान बैंक इज़ प्रमोटिंग फिंजा बिजनेस, फैसल बैंक इज़ कमिंग ऑन। तो ये बैंक्स भी हमारे साथ पार्टनर कर रहे हैं, हम पेमेंट्स भी कर रहे हैं, हम डिस्पर्समेंट्स भी कर रहे हैं और फिर हम इन बिजनेसेस के एम्प्लॉयज़ को, जिसको हम सैलरी एडवांस कहते हैं, लेंडिंग भी करते हैं। बिकॉज पाकिस्तान में आपको पता है 1 महीने का साइकिल होता है तनख्वाह का, तो सबकी तनख्वाह आखिरी हफ्ते में ख़त्म हो जाती है और फिर बैंक्स उनको लोन नहीं देते। तो हमारे जितने भी वॉलेट होल्डर्स हैं या जितने भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो हमारा पोर्टल इस्तेमाल कर रही हैं, उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोबाइल फ़ोन पे आते हैं और कहते हैं हमें 50% हमारी सैलरी का एडवांस कर दो, तो हम उनको इंस्टेंटली वो पैसे दे देते हैं और इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे अपनी मार्केट प्लेस पे अपने कस्टमर्स को मोटरसाइकिल से लेके मोबाइल फ़ोन भी किस्तों पे देते हैं। तो अभी तक हमने क्लोज टू 1000 बिजनेसेस को ऑलरेडी डिजिटाइज कर दिया और ये वो बिजनेसेस हैं जो पैंडेमिक में लार्जली अनअफेक्टेड रहे हैं, मोस्टली बिकॉज ऑफ आवर वर्क। जो करियाना स्टोर्स हैं जिनको हम मॉम एंड पॉप स्टोर्स कहते हैं या हम नेबरहुड स्टोर्स कहते हैं, पाकिस्तान में 1.5 मिलियन ऐसे स्टोर्स हैं तकरीबन। फिंजा इसको सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, फिंजा इन स्टोर्स के पास जाता है और इन स्टोर्स को लेंड करता है ताकि ये बल्क में FMCGs के साथ जो यूनिलीवर, पेप्सी, कोक, रैकेट मैनकीजर, इस तरह की कंपनीज़ हैं, उनसे सामान खरीद सके थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। करियाना स्टोर्स का प्रॉब्लम ये होता है कि उनको अभी तक किसी ने लेंड नहीं किया, ना माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ने लेंड किया है, ना कमर्शियल बैंक्स ने लेंड किया है, ना किसी ने ऑफिशियली लेंड नहीं किया। तो जब उनके पास पैसे होते हैं, वो बल्क में FMCG से या डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ें खरीदते हैं तो उनको डिस्काउंट मिलता है। तो फिंजा वो पहली कंपनीज में से है जिसने जाके थाउजेंड्स ऑफ करियाना स्टोर्स को शॉर्ट टर्म लोन्स दिए हैं और अब हमारे पास इस तरह के पोर्टफोलियोज़ हैं कि हमारे 7वें, 8वें, 9वें साइकिल पे लोग पहुंच गए हैं। मतलब उन्होंने 7, 8, 9 बार हमसे लोन्स लेके रिपीट लोन्स कर दिए हैं। तो जब हम सप्लाई चेन फाइनेंस करते हैं और करियाना स्टोर्स को लेंड करते हैं तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि आपका कॉर्नर स्टोर, चाहे पेंडेमिक का टाइम है, वो कभी भी गुड से निकल नहीं रहा, उसके पास हमेशा सप्लाईज हैं। सब कॉन्टिनेंट में जो करियाना स्टोर चलाता है उसकी एथिक इतनी ज़बरदस्त इसलिए है कि वो एक ही जोग्राफी में काम करता है, उसका एक सर्कमफ्रेंस है, उसकी मार्केट चेंज नहीं हो रही। फिर वो अपनी मार्केट को खुद लैंड करता है, जिसको आप खाता कहते हैं। वो खाते चलाता है बिकॉज आपके घर से सारा वक्त उसकी दुकान पे चीज़ें आ रही हैं, बट महीने के एंड पे आपको एक बिल आ जाता है, तो वो खुद क्रेडिट देता है। तो अब जब आप उसको आज तक किसी ने क्रेडिट नहीं दिया, वो अपनी दुकान छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो दुकान छोड़ के जब जाता है तो पीछे से पिलफरेज हो जाती है। हम उसको दुकान छोड़े बगैर उसको क्रेडिट देते हैं। जब हम उसको क्रेडिट देते हैं तो ये कभी हुआ ही नहीं। अभी तक हमारे पोर्टफोलियोज जो हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो बैड डेट पे हैं। मतलब हमने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज़ दे दिए ऑफ thousands and thousands of people, but we don't have any real bad debt. Sometimes these people get late, but then they pay. It's because they have such great pride that we work with them. तो वो कहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें या ना करें, हमने आपके साथ ही हमेशा काम करना है, क्योंकि आप हमारे लिए अल्लाह मियाँ का मोड़ा हैं। दिस इज़ वॉट दे से। नंबर 2, अगर आप उनकी दुकान में चले जाएं और ये कहें आपने मेरे पैसे देने हैं, तो उनका फेस लॉस हो जाता है, बिकॉज उनके लोगों ने पैसे देने होते हैं, तो वो ये कभी चाहते ही नहीं है। अगर कभी खुदा न खास्ता हमारा कोई क्लाइंट फौत हो जाए, करियाना स्टोर का मालिक, तो उसके रिलेटिव्स आके उसकी पेमेंट करते हैं, बिकॉज ये एथिक है। प्लस ये जो करियाना स्टोर वाले लोग होते हैं ये ओवर एम्बिशियस नहीं है, ठीक है। सो ये बड़े कंटेन्ड लोग हैं। तो दिस इज़ एन अनबिलीवेबल मार्केट एंड दिस इज़ रियली, अगर आप देखें इस वक्त कि वियतनाम में क्या हो रहा है, इंडोनेशिया में क्या हो रहा है, सम ऑफ द अदर, इंडिया में क्या हो रहा है, तो आपको पता लगेगा कि इस वक्त ये लोगों को समझ आ गया है कि अगर आपने एक मुल्क को ट्रांसफॉर्म करना है तो उस मुल्क की जो बैकबोन है
वो ये मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं और ये करियाना स्टोर्स हैं, अगर आपको इनको डिजिटाइज कर देंगे, and the first step to digitizing them is to give them digital credit. The second step is that they go out and they start to change behavior of people that are transacting on it. So this is the fastest way to transform the country. हमें ये पोर्टफोलियोज जब हमने बनाए तो ये सारे पोर्टफोलियोज हमने अपने जो हमने फंडिंग रेज की हुई है थ्रू इंटरनेशनल वेंचर कैपिटलिस्ट, उस पैसे से हमने ये पोर्टफोलियोज बनाए। जब हमने ये पोर्टफोलियोज बना लिए और इन पोर्टफोलियोज की विंटेज आनी शुरू हो गई, तो अब हमारे पास पार्टनर बैंक्स आ रहे हैं और वो हमें अपनी लेंडिंग बुक्स दे रहे हैं और हम उनके साथ पार्टनर करके ये चीज़ें कर रहे हैं। बट जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि फिंजा को खुद हिम्मत करनी पड़ी, रिस्क लेना पड़ा और ये लेंडिंग करनी पड़ी ऑफ 700-800 मिलियन, और ये पोर्टफोलियोज बनाने पड़े, उनकी विंटेज क्रिएट करनी पड़ी, और अब बैंक्स आर फाइनली कमिंग टू द पार्टी एंड नाउ दे आर शेयरिंग बुक्स। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक बैंक्स हमारे पार्टनर नहीं बनेंगे तब तक हम मुल्क को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज द अपॉर्चुनिटी इज जस्ट टू बिग। 1.5 मिलियन Karyana stores should be lent to, for example, and then there are so many other businesses. Finja and companies like Finja are going to go out and partner with the banks then to go out and meet that expectation gap. And that's how we are friends with the banks, because we want the only way we can provide the next level of digital financial services for the businesses where we are focused is to collaborate with the banks who are now struggling to provide those services to those businesses. The next level of value comes when you worry about how your partner is going to win versus how you're going to win, because you know if your partner wins, you will win, and as a consequence, the pie will grow. This people did not understand.